First of all, I have to give you the honest truth about media persons. It is still a very big deal for us to speak in front of a live audience. I mean, we can face millions of people perhaps in front of the camera, because literally speaking, there's only 1 or maybe 4 cameras in front of you, but a live audience is absolutely something else. So yeah, this is one of the first times, I must say. Also, Adil Hashmi spoke before me, and I wish I was as eloquent as him. I wish my train of thoughts was as focused as his. And I think if it was, then I would, be as popular, famous as him, and making as much money too. I wish I could. Yeah, so, but essentially we both do the same thing. I think Adil, endorses things, and us through our morning shows, which primarily revolve around commercials, we sell things too. So essentially, I think काम हमारा एक ही है. औरिया साहब पहले इतना डरा गए इंग्लिश में बात करने से कि मैंने सोचा मैं ज़रा इंग्लिश उर्दू थोड़ी सी मिक्स कर दूं, हालांकि वो है नहीं. दिस वुड हैव बीन फॉर हिज बेनिफिट. लेकिन चूँकि मैं काफ़ी अरसे से 3-4 साल से एक इंग्लिश का शो कर रही थी, आई थॉट कि इट वुड बी गुड थोड़ा सा मे बी आई गेट अ चांस एट एन उर्दू चैनल एज वेल. यहाँ अपनी उर्दू दिखा दूँ मैं. आई वॉज प्लानिंग अबाउट द टॉपिक आई ड्रीम ऑफ ए पाकिस्तान, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी जाके. एंड बिलीव यू मी, सबसे पहले तो आई थॉट कि मैं ज़रा दिल की भड़ास निकालूँ और ये बताऊँ द थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट पाकिस्तान. मेरा ख्याल है कि हम लोग एटलीस्ट माई जनरेशन, जब हम अच्छी बातें करना स्टार्ट करते हैं या फिर सोचना स्टार्ट करते हैं, वी वॉन्ट टू वी स्टार्ट थिंकिंग हार्ड कि मतलब क्या अच्छा है इस मुल्क ने हमें क्या दिया, कब हमारा वीज़ा लगेगा, हम कब बाहर निकलेंगे. तो आई थॉट कि लेट इट गेट आउट माई सिस्टम. और बाय द वे मैं अपने वो स्टेज फ्राइट की बात कर रही थी. वो तस्वीर दिखाएं जरा. मैं एक साथी अपना साथ लाई हूँ इधर, who always gives me hope, and I thought कि he should be a part of this TED event with me. ये एरो हटा दे उसके ऊपर से प्लीज. ये this is my nephew Shahmeer, और when I dream of Pakistan, I really dream for him. He's just a month old, and by the way जो तस्वीर है, he goes after my brother. My bhabhi is really proper. इस किस्म की कोई हरकत नहीं है वहाँ. So anyway, coming back to the point of the things that I absolutely cannot stand about Pakistan, and I don't know if you will agree with me or not, but one of them, and मतलब ये बड़ी पुरानी बात है, but anyway we won't go into the history, लेकिन one of them is not being able to take public transport. कितनी basic सी बात है. I am not going to get into the politics and the policies of the country and everything. उसमें भी हम काफ़ी तबसरे कर सकते हैं, but basic things like me being a woman not being able to take public transport. I'm sure the girls would really agree over here. God forbid कि हम कभी religion पे debate कर लें. No way. I don't think कि आज के पाकिस्तान में किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो religion पे बात कर सके या अपना opinion दे सके. I think that we are all very scared. That is one thing that bothers me about Pakistan, कि हम अपने दिल की बात कर नहीं सकते. We cannot, truly, we cannot expect to get justice here. मतलब मैं जब सोचती हूँ, if something goes wrong, property के झगड़े, कोई और बात हो जाए, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं यहाँ की अदालतों में जाऊँगी और मुझे कोई इंसाफ मिलेगा. I'm sorry, that is how I feel. This was like one of the primary things that was coming to my mind. Absolutely no hope for the poor. मतलब कि मैं इंडिया भी गई हूँ, बड़े मुल्क फिरी हूँ. There are only a few handful of countries that beat us at our rate of poverty. I was going through a lot of figures online. I wanted to give a shocker kind of a figure कि हमारी population कितने गरीब लोग हैं. Abject poverty I'm talking about. और हर जगह एक different किस्म का figure दिया हुआ था. तो I thought एक और shocking figure ये था, which I remembered, that 2% of the entire population of Pakistan holds 65% of its wealth. I thought that was a shocker for me. I mean, 2% सिर्फ and
percent of wealth of the country. Another thing, yet another thing that really bothers me about Pakistan is how there is absolutely no standard operating procedure, SOP. किसी चीज़ का कोई है ही नहीं. मतलब आप कहीं चले जाएं, आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने जा रहे हैं, आप अपना चालान फिल करने जा रहे हैं, आप अपने हाउस हेल्प की ID कार्ड बनवाने जा रहे हैं, आप उनकी मदद करने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार जाएंगे और फिर दूसरी बार जाएंगे, द प्रोसीजर विल हैव चेंज्ड. सडनली आपको पता चलेगा जी आपको एक और पेपर अटेस्ट करवाना था और वो तो आप भूल ही गए क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं था. आपको एक पिंक चिट लानी थी साथ, एक मिस्टीरियस पिंक चिट थी या एक ग्रीन चिट थी, पता नहीं कुछ थी जो आपको लेके जाना था, वो आप ले जाना भूल गए हैं. मतलब देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. आप जगह पे पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि जिस बंदे ने आपका काम करना है, जो कि अथॉरिटी है वहाँ की, ही हैज़ पैक्ड अप एट नून, ही हैज़ लेफ्ट फॉर द डे. मतलब एंड यू कैन नॉट बी शॉक्ड एट इट, यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि प्रॉब्ली उसका सुपीरियर भी वहाँ नहीं होगा, इसीलिए तो वो उठा था. These things will absolutely keep on going and that bothers me. मतलब अभी बड़े लोगों ने क्यूज़ की बात की कि हम जी पाकिस्तान से बाहर 1 घंटे की आप ही बात कर रही थी, दुबई पहुंचते हैं और जल्दी से जी कतार बना लेते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, मजाल कि हम कोई टिश्यू पेपर अपनी खिड़की से बाहर फेंक दे, 500 दिरहम का जुर्माना हमें पड़ जाएगा. द थिंग्स दैट वी डू, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पाकिस्तान में फिर रही होती हैं और जी पूरे मैकडोनल्ड्स के बाहर थैले गिर रहे होते हैं, जूसेस गिर रहे होते हैं. These things bother me because I know these are the very same people, this is the educated class, they can afford these cars, पैसा भी है, लेकिन ये दुबई जाके बाहर चीज़ नहीं फेंकेंगे, इधर ज़रूर फेंकेंगे. So that bothers me about it. But what bothers me the most is how I have given into the system myself. I have become such a part and parcel of the system कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं करूँगी. आई एम श्योर आप भी करेंगे. हम सारे क्यू तोड़ेंगे, हम सारे चीज़ें बाहर शायद फेंक देंगे. वी विल डू एवरीथिंग दैट वी नेगेट, जो हम बाहर जाके नहीं करते. एंड आई टेल यू कि हमें वो हिम्मत कहाँ से आई. आई थिंक वो हमें हिम्मत यहाँ से आई है कि वी वर बॉर्न इनटू सो एंड सो फैमिलीज दैट गिव्स अस अ राइट टू कट क्यूज. वी विल alter, delete, add any family name अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए, that will give us authority. एक केस इन पॉइंट बहुत मशहूर, बिलावल भुट्टो जरदारी. I mean अच्छा भला बिलावल जरदारी था, तब भी उसकी उतनी इज्जत थी, भुट्टो क्यों ऐड हो गया बीच में? So you see that is the example is being set over there. हम क्यों ना करें, हम भी अपने साथ नामों के साथ चीज़ें लगाएंगे ताकि हमारा नाम सुनते ही लोग खुद ही हट जाएं. We will throw names at the motorway ताकि हमें speeding ticket ना मिले. We will get the most famous lawyer to get us out of our mess. We will buy a degree. We will bribe the teacher. We'll pay for that kidney. We will do absolutely everything, won't we? We have become part of the system. और ये comparison मुझे है तो नहीं, अभी मैं इसकी तस्वीर देख रही थी क्योंकि ये ज़रा बुरी बातें हो रही हैं. आई डोंट वांट बेचारा बच्चा छोटा सा वो भी सुने. ये कंपैरिजन मुझे तब ज़्यादा फील होता है. आई स्पेंट द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ अब्रॉड, अबू धाबी, जिसको हम कहते तो अब्रॉड है, हालांकि साथ ही है, बट ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान में और UAE में. माई फादर वॉज इन द एयरफोर्स, ही वॉज अ पायलट, ही हेल्ड फ्रॉम चकवाल, and my mother who was from Lahore is a homemaker. तो 20 साल हम लोग, हमारी एक रूटीन होती थी कि समर वेकेशन होती है, छुट्टियाँ होती हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे. अब्बू को बड़ा शौक़ था कि हमने पाकिस्तान ही जाना है और कहीं नहीं जाना, तो हम पाकिस्तान आते थे. माई टाइम वॉज डिवाइडेड बिटवीन चकवाल, लाहौर, और इतनी डाइवर्सिटी थी. मतलब चकवाल, लाहौर और अबू धाबी, 3 बहुत मुख्तलिफ शहर, जो कि इट वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे वो डिफरेंस इतना फील नहीं होता था. मैं 2-3 महीने के लिए जाती थी. मतलब आई एक्सेप्टेड दैट डाइवर्सिटी होल हार्टेडली. चकवाल में मतलब हम चादर भी पहनते थे, आगे खोकर बाला खोकर दे चले गए तो फेस भी कवर हो जाता था. लाहौर आते थे तो शलवार कमीज़ भी ठीक थी, अबू धाबी जाते थे तो वापस जीन्स पहन लेते थे. मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. इधर आप इसको हिपोक्रेसी कहें या जो भी कहें, बट इट वॉज एज इफ आई वॉज गेटिंग बेस्ट ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, ये तीनों जगह.
एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट वॉज वेरी नाइस. पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, रहते हम अबू धाबी में थे. आई गेस यू लाइक पाकिस्तान मोर व्हेन यू लिव अब्रॉड. और फिर वी डिसाइडेड टू मूव बैक. एक दिन जी पता नहीं क्या हुआ, अब्बू को जोश चढ़ा के वापस चलते हैं मुल्क. हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा. एंड बिलीव मी इट वॉज एज इफ मैं कभी इस मुल्क आई ही नहीं हूँ पहले. मतलब द शॉकर ऑफ अ कल्चरल शॉक, मतलब अमेजिंग किस्म का कल्चरल शॉक जो मुझे फील हुआ उधर. स्कूल्स में सर, आई वॉज इन कॉलेज व्हेन आई केम बैक, mid-90s की बात है. वो टेंशन ही नहीं थी मतलब टीचर्स की जो अबू धाबी में मिलती थी. दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी. आई हैड टू स्किप सम सब्जेक्ट्स, मुझे छोड़ने पड़े. 100 बंदा क्लास में, विच इन इट सेल्फ वॉज अ बिग शॉक फॉर मी. जहाँ हम मतलब 15-20 की क्लासेस से आ रहे थे, वहाँ एकदम 100 बंदा हो गया. यू नेम इट, जो चीज़ें थी. मतलब ID कार्ड बनवाना वॉज अ हैसल एंड अ हाफ. मेरे अब्बू जो कि बड़े लिबरल होते थे एक ज़माने में, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था, उनको जो गुस्सा चढ़ता था अगर हम 9 बजे तक रात को घर में वापस ना हो. डिनर पे जाना वॉज एन ऑर्डियल. इट वॉज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज. और हर चीज़ के एंड में बात ये होती थी, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ, हम ये नहीं कर सकते, इट्स नॉट सेफ. मतलब जो सारे ख्वाब देख के जो पहले हम चीज़ें देखते थे, इट वॉज एज इफ सडनली सब कुछ चेंज हो गया है. कुछ अच्छी चीज़ें भी आई. अगेन स्पॉयलर्स, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स से कि दुनिया की कोई जगह उस तरह करप्ट नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान करता है. सो a lot of little I would say good things. I mean जहाँ अबू धाबी में हमें शुरते से, अरब पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन को इतना डर लगता था कि इट वाज अ लॉ, बाय लॉ आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइवर सीट पे नहीं बैठ सकते. तो हम ड्राइवर सीट पे नहीं बैठते थे. पाकिस्तान आके हमने ड्राइविंग भी सीख ली और कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था. फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई वॉज ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस. इट वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो कुछ अच्छे पहलू भी थे बीच में. ये अच्छा पहलू था. आई एम सो ग्लैड आई स्टार्टेड ड्राइविंग हियर. उसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. यूनिवर्सिटी वॉज अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं उसके बारे में स्टार्ट हुई तो ये क्लॉक हमें बंद करनी पड़ेगी. और इसीलिए मैंने इधर लिखा हुआ है डोंट टॉक अबाउट इट. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी. लेकिन एक इंसिडेंट, डिफरेंसेस की हम लोग बातें कर रहे हैं. आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस इंसिडेंट. आई recently joined Pakistan Television and I started off as a newscaster over there. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले कभी काम नहीं किया था और इतनी इंस्टेंट रिकग्निशन भी मिल गई थी बिकॉज आई वॉज न्यूज़कास्टिंग. बड़ी रिस्पेक्ट थी ये वो. तो एक दिन बड़े हमारे एक महज़ब किस्म के चाय वाला चाचा, ही वॉज देयर. तो लंबे लंबे हॉलवेज होते हैं PTV के. ही स्टॉप मी देयर और मुझे एकदम रोक के कहते हैं, हुमा बीबी आपसे एक बात पूछनी है. तो मैंने कहा जी पूछे. तो कहते हैं आप क्या मोमिन हैं? अच्छा, आई हैड नो आइडिया, बाय द वे यू हैव टू बिलीव मी, आई हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज आस्किंग मी. आई हैड नो आइडिया व्हाट ही मेंट. मैंने उसी वक्त लिटरल ट्रांसलेशन की और मैंने कहा कि मोमिन का क्या मतलब होता है. फिर मुझे अपनी सलीस उर्दू की टीचर याद आई कि मोमिन मुसलमान होता है. तो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स मैं मुसलमान हूँ. मैंने कहा कि बिल्कुल मैं मोमिन हूँ. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाइल आंसरिंग हिम कि इसने मुझसे पूछा क्यों है. हुमा अमीर शाह मेरा नाम है, इसको किस बात से लगा कि मैं मोमिन नहीं हूँ. सो आई वेंट होम एंड आई वॉज वेरी परप्लेक्स कि मतलब ये क्या सिचुएशन चल रही है. आई आस्क्ड माई फादर कि इस तरह मुझसे चाचा जी ने पूछा है कि आप मोमिन हैं. माई फादर स्टार्टेड लाफिंग. ही सेड मोमिन का मतलब होता है वेदर यू बिलोंग टू द शिया सेक्ट. नाउ आई वॉज इन माई mid-20s. आई थॉट आई हैड सीन द वर्ल्ड. आई हैड नो आइडिया कि मोमिन इस चीज़ को कहते हैं वेदर आई एम वन और नॉट. मैं कह आई कि मैं मोमिन हूँ. सो that was an eye-opener for me, a shocker for me. That also explained a lot of things that happened back in university. उस एक चीज़ से मुझे यूनिवर्सिटी की बातें भी बड़ी याद आ गई कि कुछ एक एक्चुअली हमारे प्रोफेसर थे जो कि मुझे और मेरे नेम से एक टाइप लोगों को बड़े मार्क्स देते थे. हम कुछ लिखें ना लिखें हमें मार्क्स मिल जाते थे. हम बड़े खुश होते थे. Perhaps he thought that I was मोमिन. और एक थे वो हमें मार्क्स नहीं देते थे. हम लिख लिख के पागल हो जाते थे उनके सब्जेक्ट में. वो हमें मार्क्स ही नहीं देते थे. He also thought I was मोमिन. So I guess I have had the brunt of both the things. टाइम है तो जल्दी से एक छोटी सी बात बताऊं. We are coming to dream, my dream of Pakistan. हम लोग 3 बहनें और एक भाई. भाई काफ़ी बाद में पैदा हुआ, सो वो मेरी इतनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में नहीं है. लेकिन तीनों बहनें हम लोग बड़ी हर शरारतों में, हर चीज़ में साथ होते थे. तो उन लोगों को बड़ा शौक़ था कि जी बंक बेड पे ऊपर चढ़ो और हमारे ऊपर से जंप मारो.
तो मुझे समझ नहीं आती थी आई वाज लिटिल कि क्या मतलब क्या हो रहा है। तो कहती थी तुम्हारे नाम का मतलब है हुमा का कि इट्स अ बर्ड जो कि किसी के ऊपर से उड़ जाए तो वो मतलब ही बिकम्स अ किंग और समथिंग लाइक दैट। तो उसी चक्कर में मैंने कलाबाजी भी खाना सीख ली और बड़ा कुछ कि शायद मैं भी कुछ हो जाऊंगी। लेटर ऑन आई रियलाइज कि इट्स अ बर्ड ऑफ पैराडाइज और बर्ड ऑफ जॉय। अगेन टू थिंग्स दैट आई डोंट नो वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। बट ड्रीम्स, यू डोंट लेट गो ऑफ योर ड्रीम्स। मतलब हम बचपन की बातें, डिल्यूजन्स हैं, hallucinations हैं, castles in the air हैं, whatever you say, you don't let go of them. You keep dreaming about your dreams and again. हम 80s में या अर्ली 90s में एक दफ़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे वालिद साहब को कि हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें और ये सारा सिलसिला स्टार्ट हो। ही सेड नो वे, नथिंग डूइंग, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, हमने कहीं जाना ही नहीं है। मैं बहुत कुड़ती थी इस बात पे एक ज़माने में, मतलब हम सारी बहनें इंक्लूडिंग माई मदर कि मतलब हमने क्यों नहीं लिया, एजुकेशन ये हो जाती वो हो जाती। आज आई डू रियलाइज दैट परहैप्स ही डिड द राइट थिंग। I have had to evolve my thought process to actually come to this conclusion, to actually agree with those decisions that my father took many years back. But I feel that I have the opportunity to stand here and talk to you because of Pakistan, because of where I am. I perhaps wouldn't have been Huma Amir Shah if I was in any other country in the world. I would not have been a first-class citizen. Why should I have let go of so many opportunities just because मुझे किसी बाहर के मुल्क में रहना था? जिस मोहब्बत से, जिस रिस्पेक्ट से मुझे यहाँ इनवाइट किया गया to speak here, I am overwhelmed and I am very aware of the fact that it is because of what this country has given me. So for all of you out there, you are students and perhaps you are planning to go abroad and study, do come back, क्योंकि जो recognition, जो इज़्ज़त आपको इस मुल्क में मिलेगी उतना ही हार्ड वर्क करने में जितना आप बाहर करते, दैट विल बी मच मोर रिवॉर्डिंग। दिस इज़ माई ड्रीम फॉर यू एंड दिस इज़ माई ड्रीम फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो इफ ओके दे हैव गॉन फॉर द लिटिल बॉय हु वॉज हेयर, आई रियली ड्रीम कि वो जब बड़ा हो तो वो पाकिस्तानी, वर्ल्ड रिनाउंड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आई होप कि जब वो बड़ा हो तो ऐसी लिबरेशन पाकिस्तान में आ जाए कि वो पार्क्स में भी माया खान की बड़ी बात हो रही थी, प्लीज़ हम सारे माया खान टाइप नहीं हैं, इसलिए डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट माई प्रोफेशन और मी, बट ही शुड बी एबल टू गो टू अ पार्क एंड नॉट बी विदाउट द फियर ऑफ बीइंग अबडक्टेड और विदाउट एनी माया खान चेजिंग हिम, और इवन उसको बॉम्ब्स का ना पता उसको, मतलब आई वॉन्ट हिम टू ग्रो अप इन अ प्लेस विच वॉज एज पीसफुल एज वेयर you know my parents' generation they grew up. This is what I want to say, and I would like to conclude with a song. ये मुझे लाइन बहुत ही पसंद है जॉन लेनन की, I'm sure सारों ने आप लोगों ने सुनी होगी. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I'm sure about it.